Past President of the Institute of Chartered Accountants of India, Shri Amarjit Chopra ji, Central Council member, Mr. Sanjeev Singhal, the fellow speaker and of course a very good friend, and we have been delivering lectures together, Shri Ashok Batra ji, CFO of the, what do you call, Watercooler, Mr. Ajay Arora ji, Dr. Ravi Gupta ji, and अरुण आहूजा जी सिटिंग इन टमी, राज चावला जी, रमन मंगला जी हैं या नहीं मुझे नहीं पता, चलेंगे वो तो पता नहीं है, लेकिन बैठे हुए हैं रमन मंगला जी, CM जैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। वेल फ्रेंड, लेट मी टेल यू, मैंने कहा था मेरी सुनते हैं, लेकिन ये वाली नहीं सुनती है, मेरी औरतों से बनती नहीं है। अमरजीत जी की बनती है औरतों से, मेरी नहीं बनती है, पहले बता दूं। So what I'm trying to explain, we of course have written a good law, but what they have done is whatever was against the SSC they have picked up, and whatever for the benefit of the SSC they have not picked up at all. I'm really criticizing this law. I have, for the 5 years I have not criticized, but now I am free because my man is not there. I can certainly criticize this law, the bad law which has been made, I'm telling you. They should not have been done. I don't think that the government is, Parte is really good. I'm not denying that. Parte is really wonderful. And she devoted 1.5 hours on Part A, no doubt. But Part B, I fail to understand what kind of amendments you have brought in. Talking about simplicity, is it simple? Everyone will have to decide, and every year it has to decide if is not a non-business SSC, whether he should go for new tax regime or should remain in the old tax regime. Keep on changing, you have to find out. I'll tell you about that all. But 104 amendments, out of 104 amendments, let me tell you, due to 44AB, there are 20 amendments, because everywhere, wherever 44AB was there, that you have to file a return, you have to file an audit report along with the return of income before the due date mentioned under 139(1). Now they have to change that you have to obtain and furnish the audit report 1 month prior to the due date of return mentioned under 139(1). So for that they have changed everything. Change करते ये नहीं देखा है, वो फाइंड किया है और फाइंड करके जहाँ जहाँ 44AB लिखा था उन्होंने वहाँ पर 1 महीना लिख के चेंज कर दिया। यहाँ तक एक 32AB सेक्शन है जो 91 से खत्म हो चुका है, उस पर भी लिख दिया ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी ऑब्टेन्ड एंड फर्निश्ड विद इन 1 month प्रायर टू डेट। क्या यार तुम बनाते, वो फाइंड किया कंप्यूटर से, wherever 44AB was written they have given that you should report it. 32AB investment deposit is not there from 1991, and they are writing that also. There are many other sections which are not there. इसी तरह 12AB आया है for charitable trust, 12AB for registration and 1023 for new registrations, because now registration will be for 5 years. वो 12AB भी डाला हर जगह जहाँ 12AA लिखा था। अब एक सेक्शन 56 सब सेक्शन 2V है जो 25,000 रुपये हुआ करता था गिफ्ट वाला। सेक्शन 56 सब सेक्शन 2VI है जो 50,000 रुपये हुआ करता था गिफ्ट वाला। सेक्शन 56(2)(7) है जो खत्म हो चुके हैं, उसमें भी लिख दिया है 12A एंड 12AB। अरे वो सेक्शन ही नहीं है तो 12A क्या AA क्या लिखना है, बट अमेंडमेंट सब डाल, वही फाइंड किया wherever written 12AA please write along with that 12AB। ये देखिए ये सेक्शंस बनाए। I don't understand what kind of a law they have made. इतनी मिस्टेक्स हैं मैं आपको बता नहीं सकता। Full of mistake this law is. And why did they do it? I fail to understand. अब आया 115O, कोई dividend of distributed tax is be not taxable in the hands of resident. So wherever 115O was written, they have abolished that, they have deleted that. So there are also 7-8 places 115O. So about 35 changes तो सिर्फ consequential है, due to 44AB, due to 115O and due to 12AB. इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है। आइए अब पहली अमेंडमेंट क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 13A। ये इनवाइट और रीड ये इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो फंड थे
और जो REIT है, Real Estate Investment Trust, these are trust, they were eligible as a business trust only when their units were listed on a recognized stock exchange. उनको तभी एलिजिबिलिटी मिलती थी बिजनेस ट्रस्ट को इनवाइट, और आई सेड REIT only when their units were listed on a recognized stock exchange. मेरे पास आए थे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वाले, saying that we are not listed on a recognized stock exchange, we don't get a benefit as the others are getting. लॉ ने मान लिया है now that word and their units are required to be listed on a recognized stock exchange, that word has been deleted from there. So even if unlisted or listed unit, they will get the same benefit, they will be treated as business trust and get the same benefit. ये पहला पॉइंट उन्होंने चेंज किया है. सेक्शन 242A आपके मतलब का नहीं है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा नहीं, वो सेग्रीगेटेड यूनिट्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. अब जरा सेक्शन 9 सुनिए. पिछली बार आया था सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, अगर उसकी यहाँ पर है तो वो बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा. If a non-resident has significant economic presence, that will be treated as a business connection and they will have to pay tax in India. लेकिन significant economic presence के उसमें जो explanation डाली थी, लिखा था as it exceeds a certain limits as prescribed. आज तक वो लिमिट प्रिस्क्राइब हो नहीं सकी क्योंकि मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो अभी तक लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं हुई है. इसलिए वो जो उन्होंने डाला था उसको फॉर द टाइमिंग पोस्टपोन कर दिया फॉर 1 year. Significant economic presence may be here, but you are not liable to pay tax here. It will not be treated as a business connection. लेकिन एक बड़ा खतरनाक एक्सप्लेनेशन डाला है. अगर एक नॉन रेजिडेंट है, उसको कोई इनकम हुई फ्रॉम एन एडवर्टीजमेंट विच केटर्स टू इंडियन कस्टमर, और उसको इनकम हुई फॉर सेल और परचेज ऑफ गुड्स और दिस फ्रॉम दिस एडवर्टीजमेंट, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है और उसकी वजह से यहाँ सेल और परचेज ऑफ गुड्स में उसकी इनकम बढ़ गई, तो वो इनकम विल बी ट्रीटेड एज एट्रीब्यूटेबल टू द बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया एंड दे विल बी लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया. मतलब उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से, उस सेल ऑफ डेटा, जो डेटा उन्होंने खरीदा है इंडिया का, वो डेटा से खरीद कर उनकी कोई सेल में इंक्रीज हुआ, कोई बिजनेस में इंक्रीज हुआ, सो दैट पार्ट ऑफ इनकम दे विल बी लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया. सो वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ ए थिंग, बट दे हैव ब्रॉट दिस. अब सेक्शन जो 10 में चेंजेस हुई हैं, उसके पहले सेक्शन 6 में भूल गया, पहले वो करना पड़ेगा. एज रिगार्ड्स रेजिडेंट, ऑफ कोर्स you know that there is an explanation 1 clause B which says in the case of explanation 2 में देखिए वो है ना 365 days and 60 days if they are there, they are resident in India. But clause B says in case of a citizen of India or a person of Indian origin who makes a visit to India, the period of 60 days shall be substituted by 182 days. ये लिखा हुआ था, period of 60 days will be substituted by 182 days. That means a citizen of India and a person of origin in India can stay in India for 181 days without being called a resident of India. 181 days. He could stay in India. Now that period of 182 days has been substituted by 120 days. Meaning thereby you can stay in India maximum 190 days. And you cross the 190 days, the moment you will be treated as resident in India. There were people who were having economic interest here, but they were staying outside India, could make a visit to India for 181 days, and they were not paying tax on the income which they have earned in foreign country. They were not paying tax on income which they have earned in foreign country. By staying in India for 181 days, we have a residential concept, that if foreign income is also taxable if you are resident in India. Now, if you are non-resident, you don't have to pay tax on the foreign income. So that period was 181 days you could stay. And they were staying here for 180 days and they were not paying any tax on the foreign income. Now, they can stay here only for 119 days. The moment they cross 119 days, 120 days, they will have to pay tax on the foreign income also in India. Yes, they can take the tax credit of the tax paid in that country or tax paid in this country, whatever is the minimum. So that point is a relevant point, it is not wrong. The next, of course, is the problem.
Section 6, Clause 1A inserted. क्या लिखा है? That if you are a citizen of India, you are a citizen of India, you will be deemed to be a resident in India. You will be deemed to be a, once you are a citizen, you are resident in India. US से भी यही है. If you are a citizen, a green card holder, you are a resident in India, you have to pay tax on the global income. ये USA का rule है. You are a citizen of US or you have a green card of the US, you are treated as a resident of US and you have to pay tax on the global income. इन्होंने वही follow कर दिया. You are a citizen of India, you will be deemed to be a resident in India unless there is an income on which you are liable to pay tax in that foreign country. Or if you are not liable to pay tax in foreign country due to domicile or due to your residence or similar activities, then you will be treated as deemed to be resident. घबराने की बात नहीं है. Purpose क्या था? There are people here, आप तो देखते ही हैं, they have been removing outside this country. They are not resident in one particular country. If you are a resident in one country, you pay tax there. If you are resident in both countries, you have a tiebreaker rule also for paying the tax. But suppose you are neither a resident of India, because you are non-resident, you are not staying here for 182 days, and you are also not a resident outside India because you are moving from one country to another country, the third country, without being a resident of any other country. Neither you are resident in that country, nor you are resident in this country. You will not pay tax there. So that's why the tax was not being paid on the foreign income. India is concerned about the foreign income. They are not concerned about the Indian income. Indian income, you are a non-resident or resident, you have to pay tax in India. But you are a non-resident and you are not paying tax anywhere in the world for that income which you have earned outside India. And India has a rule that even foreign income is taxable. How will this happen? So that's why they had brought it. अब शोर मच रहा है दुबई में, गल्फ में, वो में, वहाँ क्या होगा? ऐसे बहुत लोग हैं जो दुबई में जाके सेटल नहीं होते, दुबई में रहते हैं, इनकम का वाइटल इंटरेस्ट यही है, उनकी फैमिली भी यही रहती है, उनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भी यही है, लेकिन अपना टैक्स बचाने के लिए फॉरेन इनकम के वहाँ से जो अर्न करते हैं वो वहाँ पर टैक्स नहीं देते थे. उनको पकड़ा है. वो लैंग्वेज सर गलत नहीं है, अब क्लैरिफिकेशन आनी है. लैंग्वेज ठीक लिखा है, बट ऑफ कोर्स द इंटरेस्ट, द टारगेट इज दोज पर्सन हु आर नाइदर पेइंग टैक्स इन दैट कंट्री. अगर गल्फ में देखिए तो हमारा पास यूए के साथ ट्रीटी है, और ट्रीटी में इवन इफ इज अ रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री या रेजिडेंट, यहां तो डीम्ड रेजिडेंट हो ही गया, सिटीजन डीम्ड रेजिडेंट है ही है. पहला पॉइंट तो आ गया, सिटीजन है डीम्ड रेजिडेंट. एंड सपोज इज अ रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री ऑल्सो, देन वी विल अप्लाई टाई ब्रेकर रूल. और टाई ब्रेकर रूल यही कहता है कि जहां उसका एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, अगर परमानेंट होम है, सॉरी परमानेंट अपने में, और वो नहीं है जहां उसका वाइटल इंटरेस्ट है, जो दुबई में काम कर रहा है उसका वाइटल इंटरेस्ट वही है, उसकी इनकम वही अर्न कर रहा है, और इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जहां जहां ट्रीटी है टाई ब्रेकर रूल लग जाएगा, और टाई ब्रेकर रूल ओवरराइड्स द ट्रीटी, ओवरराइड्स द इंडियन लॉ. तो उसमें फर्क नहीं पड़ने पड़ा, क्योंकि यहाँ बैठे हुए रकेचा साहब, उनकी बहू वहाँ, बेटी वहाँ पर है, उनका सन इन लॉ वहाँ पर है, और बेटा भी वहाँ जाता रहता है. सर ध्यान रखना, बेटे का चक्कर पड़ सकता है, आपकी बहू का, सॉरी बेटी का और बहू उसका नहीं पड़ेगा सन इन लॉ, क्योंकि दे आर परमानेंट, दे हैव ए वाइटल इंटरेस्ट देयर, दे आर प्रैक्टिसिंग देयर. There is absolutely no problem. They will not be affected. The only effect may be in Bahrain. There is no double taxation agreement with Bahrain. There is a double taxation agreement. Kuwait, we have a double taxation with Qatar, we have a double agreement with many, but we don't have it. मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुझे मार पड़ेगी, मुझे सब जगह जाना है वहाँ बोलने, और बहरीन वाले तो कहेंगे मरवा दिया हमें. But don't worry, that point will be settled. They are going to come out with some clarification. I had a talk with them. I said, what have you done? He said, our intention is not to tax them. Their intention is those who are avoiding tax, they are neither paying tax in this country nor paying tax in foreign country. That is the person they have in mind. So there is nothing to worry about that part. That is almost settled, you know. And one more. क्योंकि उन्होंने ये कहा दिया है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की डेफिनेशन चेंज कर दी है. सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 को चेंज किया. अर्लियर व्हाट वाज सेक्शन 6 सबसेक्शन 6? That you will be treated as individual lecturer will be treated as not ordinary resident in India if
they were non-resident for 9 out of 10 previous year. And they were resident, they were aggregate stay in India was 29 days or less. अगर 729 days or less इंडिया में है और पिछले 9 साल नॉन रेजिडेंट हैं तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाते थे. रेजिडेंट ऑर्डिनरी कब माने जाते थे? मोर देन 1 year रेजिडेंट प्लस 730 days और मोर इन इंडिया. एंड था, ये वर्ड एंड हटा दिया गया. 730 days नहीं काउंट होगा. अब काउंट होगा, you will be treated as not ordinary resident in India if you were non-resident in 7 out of 10 previous year. 9 out of 10 को क्या कर दिया? 7 out of 10 previous year. अगर वो not ordinary resident होता है तो income which he earned outside India is not taxable in India unless it is from a business or a profession which is controlled or set up in India. तो इसलिए उनको खबर. अब फायदा होगा that 7 times you are non-resident out of 10 years, you will be considered as not ordinarily resident. And not ordinarily resident will not have to pay any tax in this country on the foreign income unless that foreign income is from any business or profession which is set up in India or controlled from India. तो ये वाला क्वेश्चन है जो ध्यान रखिए. 7666 में कंसेशन दी गई है, गलत नहीं किया गया, कंसेशन दी. हाँ, ये मैं एडमिट करता हूं कि हमने ये वाला करवाया है, ये मैंने करवाया. आई एडमिट इट. वी हैव गिवन इन द रिपोर्ट एंड दिस इज देयर. आइए नेक्स्ट सेक्शन 1023C में सेक्शन 12 के साथ करूंगा. सेक्शन 1023 वी विल डू दैट. एक देखिए, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है. आबू धाबी, वही आबू धाबी के वो आए थे, आपको पता है, चीफ क्या कहते हैं उनको, सुल्तान जी, वो आए थे. उनका पैसा इंडिया में लगवाना चाहते हैं और एक सॉवरेन वेल्थ फंड है. सॉवरेन वेल्थ फंड किसी भी फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट उस कंट्री को कंट्रोल करती है, ये वो बनाती है. हम चाहते हैं वो सॉवरेन वेल्थ फंड या वो जो आबू धाबी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, दे शुड इन्वेस्ट इन इंडिया. वो इंडिया में इन्वेस्ट करें. तो उनको कहा गया अगर आप 31 मार्च 2024 तक इन्वेस्ट कर देते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट किस में करनी है? इंफ्रास्ट्रक्चर में. अंडर 80IC के जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वहां पर इन्वेस्ट कर दीजिए, तो हम आपको डिविडेंड, आपको इंटरेस्ट और कैपिटल गेन तीनों माफ कर देंगे. कोई बुरी बात नहीं करी सर. ये तो फायदे में है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी उस कंट्री से जो कंट्री के सॉवरेन वेल्थ फंड है, controlled by that country, government of that country. They would like to invest in infrastructure in India, जैसे जापान इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है. ये आबू धाबी के वाले यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे जो भी इन्वेस्टमेंट की इनकम होगी, इंटरेस्ट की होगी, डिविडेंड की होगी या कैपिटल गेन की होगी, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी. तो गलत तो नहीं किया सर. जो ठीक होगा मैं ठीक कहूँगा, जब गलत होगा मैं गलत कहूँगा. एक सेक्शन 1045 था कमाल का. यूपीएससी का चेयरमैन है या मेंबर ऑफ यूपीएससी है या इलेक्शन कमिश्नर है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको अलाउंसेस और परक्विजिट माफ कर रखे थे. उनके माफ थे और इवन रिटायर्ड के भी माफ थे. अलाउंसेस परक्विजिट. रिटायर्ड का F2 लिमिट थी 14,000 रुपया फॉर दिस हाउस के लिए और 1,500 रुपया फोन कॉल के लिए, वो था 14,000 रुपया उसके लिए. अब 1045 ओमिट कर दिया गया है. मीनिंग देयर बाई, चाहे वो यूपीएससी का चेयरमैन हो या मेंबर यूपीएससी हो या वो इलेक्शन कमिश्नर हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, उनको भी वही अलाउंसेस परक्विजिट सब के सब टैक्सेबल होंगे. देयर इज नो एग्जेम्पशन गिवन टू देम. कोई एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी. जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था इन पोस्टों को, उसको हटा लिया गया है. 1045 इज ओमिटेड. सो उसके लिए हमें कोई खास बात नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू व्हाट काइंड ऑफ ए चेंज इज देयर. लेकिन बेड़ा गर्क कर दिया चैरिटेबल ट्रस्ट का. हमने एक चीज कही थी जो उन्होंने मानी, लेकिन उसका बेड़ा गर्क बाकी कर. हमने कहा था देयर आर एग्जिस्टिंग चैरिटेबल ट्रस्ट जिनके पास रजिस्ट्रेशन तो है बट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही नहीं. कॉपी मांगते हैं तो कॉपी भी नहीं मिलती वहां से, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है. जो चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है लेकिन पर उनके पास नंबर ही है, और कईयों के पास नंबर भी नहीं पता उनको, और बगैर नंबर के आप एग्जेम्पशन ले नहीं सकते जब तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर ना डालें.
अब उनके पास अवेलेबल नहीं है, और जब एओ मांगता है कॉपी लाइए तो हमारे पास है ही नहीं, सिर्फ नंबर ही डाल रखा है। तो हमने कहा था इसका एक काम करिए, एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि वो उनको डी नोवा रजिस्ट्रेशन दोबारा मिल जाए, सिर्फ वो अप्लाई करें और उनको रजिस्ट्रेशन आप दे दीजिए। कोई बुरी बात तो कही नहीं थी कि भैया अब इनके पास है नहीं, 1940 में रजिस्टर हुआ, सॉरी 60 में रजिस्टर हुआ, 65 में हुआ, 70 में हुआ, ओल्ड रिकॉर्ड है। यू डोंट हैव ए रिकॉर्ड ऑफ द कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आई डोंट हैव ए रिकॉर्ड ऑफ द कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एंड आई हैव टू फाइल ए रिटर्न ऑफ इनकम वेयर आई हैव टू मेंशन माय रजिस्ट्रेशन नंबर, एंड अदर इफ आई डोंट मेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर आई डोंट गेट एन एग्जेम्पशन। सो एक ऐसी इंटीमेशन ले लीजिए, एक ऐसा पेपर ले लीजिए उनसे, दे में अप्लाई एंड यू में गिव देम रजिस्ट्रेशन। कोई बुरी बात नहीं करी थी, वो इन्होंने कर दिया कि आप 3 महीने के अंदर फ्रॉम 1 जून ऑनवर्ड्स, मतलब जून जुलाई अगस्त में जितने भी एग्जिस्टिंग चैरिटेबल ट्रस्ट है, दे विल हैव टू मेक एन एप्लीकेशन, और विद इन 3 मंथ्स उनको रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी उनका होगा वो मिल जाएगा अंडर 12AB। ये तो कोई बुरी बात नहीं है, एग्जिस्टिंग है बट अवेलेबिलिटी नहीं थी, कोई फट गया था, किसी के पास सर्टिफिकेट था, किसी के पास नहीं था, दे में अप्लाई 3 months, विद इन 3 months फ्रॉम दैट इज बाई 31 अगस्त तक अप्लाई कर दीजिए। लेकिन आगे क्या किया वो हमने नहीं कहा था, बिकॉज वंस रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड इट इज परमानेंट अनलेस इट इज कैंसल्ड। वंस रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड इट इज परमानेंट अनलेस इट इज कैंसल्ड। अब इन्होंने लिख दिया है registration will be for a period of 5 years, and every 5 years you will have to apply for fresh registration, and the application has to be made within 6 months prior to the expiry of that registration certificate। मतलब 6 महीने पहले ही अप्लाई कर देना है रिन्यूअल के लिए। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो 6 महीने पहले ही अप्लाई कीजिए बिफोर दिस। और एक और तरीका बता दिया, ये हमने नहीं कहा था, हमने कहा देखिए यू हैव स्टार्टेड ए ट्रस्ट बट यू हैव नॉट स्टार्टेड दी चैरिटेबल एक्टिविटीज़। को चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करने में टाइम लगेगा, आप स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, वो चैरिटेबल एक्टिविटी तो जब होगी जब आप क्लासेस शुरू करेंगे, तब तक तो आपने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और अदर लैंड एक्वायर करिए, तो चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं थी। तो उन्होंने कहा इसके लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यू अप्लाई फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन and you will be given provisional registration, और provisional registration एक बार मिल गया तो फिर उसकी फिर रिन्यूअल होगी। provisional registration will be for 3 years, provisional registration will be for 3 years, you will have to apply for provisional registration, let me tell you, और उसकी application before 1 month of the end of the commencement of the previous year। मतलब अगर आप previous year 19-20 है तो अप्रैल को शुरू होता है प्रीवियस ईयर, उससे 1 महीना पहले आप एप्लीकेशन देंगे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की। जिस साल की एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं, सपोज आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं असेसमेंट ईयर 2020 की और प्रीवियस ईयर 1920 है, मैं आगे बोलता हूँ 2020 तो पुराना हो गया, यू वांट टू टेक एग्जेम्पशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 असेसमेंट ईयर 21-22, 1 अप्रैल 2020 से चाहिए एग्जेम्पशन, तो आपको 1 महीना पहले 28 फरवरी तक अप्लाई करना पड़ेगा फॉर टेम्परेरी और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। 1 महीना पहले अप्लाई कर दीजिए, उस पर अप्लाई कीजिए, आपको 1 महीने में मिल जाएगा। आफ्टर 1 मंथ क्या मिलेगा? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वैलिड होगी फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। लेकिन अगर आपने कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी कर दी और चैरिटेबल एक्टिविटी शुरू कर दी तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर परमानेंट रजिस्ट्रेशन विच इज फॉर 5 years, फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन विच विल बी फॉर 5। कब अप्लाई करना पड़ेगा? अगर ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन खत्म होने जा रही है तो 6 months बिफोर। अगर आपने कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी चैरिटेबल कर दी तो विद इन 6 months यू हैव टू अप्लाई फॉर परमानेंट रजिस्ट्रेशन। अब एक और पॉइंट है, पहले हमारे पास 12A में भी रजिस्ट्रेशन होता था और 1023C में भी अप्रूवल होती थी। अब उन्होंने कह दिया एक जगह होगा, या 1023C या 12AA में। अगर दोनों जगह है तो वो इनऑपरेटिव कर देंगे एक जगह। अगर आपका इनऑपरेटिव हो गया तो फिर आपको फिर अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। सो इट हैज बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड। लेट मी टेल यू, द प्रोसेस हैज बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड फॉर दिस। और उसके बाद क्या किया है, अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, आपको डोनेशन मिलती है
ATG का एग्जेम्पशन देना है तो उस चैरिटेबल ट्रस्ट की ड्यूटी बन गई है टू अपलोड एक स्टेटमेंट, जैसे स्टेटमेंट आती है तो TDS की एक स्टेटमेंट बनाएंगे कितनी डोनेशन आपको सारे साल में मिली, और उसकी सर्टिफिकेट आप उसको भी देंगे जिसने डोनर दी, और वो जो अपलोड की वो ऑटोमेटिकली आपके रिटर्न में आ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब उनकी एक ड्यूटी बन गई, इफ दे आर रिसीविंग एनी डोनेशन अंडर 80G5 में ड्यूटी बना दी, इफ यू आर रिसीविंग एनी डोनेशन, और इवन फॉर उसकी भी बना दी साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन की, इफ दे आर रिसीविंग एनी कॉन्ट्रीब्यूशन और डोनेशन, दे विल हैव टू अपलोड द इंटायर अमाउंट ऑफ रिसीव्ड ऑन द गवर्नमेंट व्हाट यू कॉल पोर्टल। उस पर आपको अपलोड करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन वहाँ चली जाएगी और वो आपके रिटर्न में ऑटो फिल हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है आपको पता ही है, बोगस डोनेशन क्या होता था, 1 लाख दिया, लाख वापस ले लिया, समझ में आ गया? अब वो वापस लेने वाले में जरा प्रॉब्लम आएगी। यू विल हैव टू अपलोड द इंफॉर्मेशन, सो दैट पॉइंट वापस अभी भी ले लेंगे आप, मैं बात कर रहा हूँ, समझ में आगे वो देख रहा हूँ उधर हमारे CM ज़्यादा जल्दी सोचते हैं मेरे से ज़्यादा, मैंने बोला नहीं, बट पॉइंट इज they are going to upload that information and that information will come into your return and you cannot have a bogus receipt then in that case. बोगस खत्म हो जाएगा। जो बोगस हम ऑटोमेटिक ATC ले लेते हैं उसकी डिटेल तो कोई मांगता ही नहीं है। Where is the detail of ATC? You are taking ATC 1,50,000, everybody is asking for detail. You are giving ATG, चलो नाम आ गया था, लिख दो कहाँ दिया, लेकिन क्रॉस चेक तो नहीं होता था। Now it will be cross check in that case. That is the problem. That will be cross check. ये मैं आपको बता दूं, ये चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए आया है। पर ATG अगेन इट इज फॉर 5 years, सब जगह 5 year कर दिया है, आपको अप्लाई दोबारा करना पड़ेगा, वो कर दिया है सर, ये भी कर दिया है। कमिंग बैक सर, इस बार गलती हो सकती है मेरे से, तो मैं अदरवाइज गलती नहीं करता, मैं इसको 3:30 बजे तक पढ़ता रहा, तब भी मेरे को समझ में नहीं आया, कई चीज़ें रह सकती हैं। सो आई एडमिट आई मे कमिट ऑल्सो ए मिस्टेक दिस टाइम, बिकॉज सच ए कॉम्प्लिकेटेड अमेंडमेंट्स आई एम टेलिंग यू, यू गो मैड रीडिंग इट। सो मैंने जो कोशिश की, जो मैं कर सकता हूँ, रवि जी पढ़ रहे हैं इसलिए मुझे डर लग गया, मैं क्या पहले ही बोल दूँ। मैं जब भी कहीं बोलता हूँ ना, वो किताब लेके बैठ जाते हैं और देखते हैं फुल स्टॉप है, कॉमा बोला कि नहीं बोला, तो मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। वो भी यही देख रहे हैं कि मैंने गलती तो नहीं की है और पकड़ लेंगे मुझे, तो इसलिए मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। आपने गलत नहीं लिखा, चलो एक ही बात है, आपने तो कटिंग पेस्टिंग की है, गलत कहाँ लिख सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। राज तो मुझे करना पड़ रहा है। कमिंग बैक सर, कटिंग पेस्टिंग में भी गलत है, नहीं है, वहां पर मेमोरेंडम में कुछ लिखा है और एक्ट में सेक्शन में कुछ लिखा है। मैं बता रहा हूँ, वो 180JJA डाला ही नहीं है उन्होंने उसमें मेमोरेंडम में, जबकि वहाँ पर है 80JJA। सो देयर आर मिस्टेक्स इन दिस ऑल्सो। कमिंग बैक, नेक्स्ट पॉइंट सर, देखिए वो पॉइंट मैं बाद में बताता हूँ, टैक्स का पॉइंट ले लेता हूँ पहले, फिर आगे सेक्शन लेता हूँ क्योंकि वो रह ना जाए। वी ऑल नो दैट रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर नॉट गिवन इनकम टैक्स एक्ट, दे आर गिवन इन शेड्यूल टू दी फाइनेंस एक्ट, और पार्ट 3 ने रेट ऑफ इनकम टैक्स दिए हैं फॉर इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, सबको दिया है, उसमें एब्सोल्युटली कोई चेंज नहीं है। द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स हैव नॉट बीन चेंज्ड फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, कोई चेंज नहीं है रेट। कभी आप सोचो रेट में कोई चेंज आया, कोई नहीं है, वही 37% है सरचार्ज, अगर इफ इट इज मोर देन 2 करोड़, वही 25% सरचार्ज, वही है 15% सरचार्ज, 10%, वही सरचार्ज पर कंपनी है 7% एंड 12%, वही सरचार्ज पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, वही इफ इट एक्सीड्स 1 करोड़ 12, कोई फर्क नहीं है। तो फर्क कहाँ डाला है? एक सेक्शन डाला है, सेक्शन 115 BAC, another section 115 BAD, कैपिटल BAC, कैपिटल BAD, 2 सेक्शन पहले डाले थे जब वो आया था कॉर्पोरेट टैक्स का रिडक्शन, 115 BAA एंड BAB। BAA में तो डाला था कि आपको 22% टैक्स देना है, और BAB में डाला था आपको 15% टैक्स देना है।
ये तो वाला न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो BAB था, और वो पहले तो 115 BAB में चेंज कर दिया है. 15% was tax payable in case of a new manufacturing unit, only new manufacturing unit. उसके लिए 15% टैक्स पेबल था, और कंडीशन, अदर कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, एंड यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी एग्जेम्पशन रिडक्शन. अब क्या किया है, उस 115 BAB में डिमांड थी जो पावर जनरेशन है, दे आर नॉट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सो दिस benefit of 15% tax has been given, extended to also the new power generating unit. Please note the word new power generating unit will also now can pay tax at the rate of 15%, which was brought there. अब उसको उधर ऐड कर दिया है. एक 115 BAA था कि you will not be allowed any reduction under chapter 6A except 80JJAA. कंपनियों के यही था ना, यू विल नॉट बी अलाउड एनी रिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट 80JJAA, वो एम्प्लॉयमेंट का है. लेकिन क्योंकि अब ATM आ गया है, ATM मीन्स इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, और ATM आने की वजह से वो डिडक्शन मिलनी है ATM की कंपनी को. सो दैट्स व्हाई दे हैव चेंज, यू विल नॉट बी अलाउड एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट ATM एंड 80JJAA. कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट इसलिए डाली कि अब डिविडेंड जब दिया जाएगा, कंपनी ATM में रिसीव करती है और फिर उसको बांटती है, तो उसका डिडक्शन तो मिलना चाहिए ना. वो डिडक्शन उन्होंने वहां डाल दिया, चैप्टर 6 से ATM मिलेगा. अदरवाइज 115 BAA में कोई चेंज नहीं करा, एक्सेप्ट 80B डाला. अब 115 BAC सुनिए. Notwithstanding anything contained any other provisions of the Act, notwithstanding, an individual HUF may, if he opts, pay income tax at the rate computed as follows, on the basis of the following rates, provided it satisfies the condition laid down in 115 BAC subsection 2. क्या कह रहा है कि इनकम कैसे कंप्यूट करनी है वो बात की बात है, लेकिन आप दे सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है टू पे टैक्स अंडर ए न्यू रिजीम. एंड व्हाट इज द न्यू रिजीम? अप टू 2.5 lakh nil, next 2.5 lakh 5%, next 2.5 lakh 10%, next 2.5 lakh 15%, next 2.5 lakh 20%, next 2.5 lakh 25%, and balance 30%. 2.5 लाख जोड़ते जाइए और 5% जोड़ते जाइए, मतलब अप टू 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 5%, नेक्स्ट 2.5 10%, नेक्स्ट सिंपल है. सिर्फ 3 रेट के 6 रेट हो गए, है तो सिंपल ही ना. कितना सिंपल है. 2.5 लाख का नील, 2.5 लाख का अगला 5%, अगले 2.5 लाख का 10%, अगले 2.5 लाख का 15%, अगले 2.5 लाख का 20%, अगले 2.5 लाख का 25%, बाकी का 30% टैक्स देना पड़ेगा. दीजिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए अगर वो देंगे तो ये डिडक्शन और एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगी. कौन सी डिडक्शन नहीं मिलेगी और एग्जेम्पशन? मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, या सारे इकट्ठे ही कर देता हूँ. आप बिजनेस भी हो सकते हैं, नॉन बिजनेस भी हो सकते हैं. पहला, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं एंड यू आर इंटाइटल्ड टू लीव ट्रेवल कंसेशन, मिलता था लीव ट्रेवल कंसेशन वंस इन 2 ईयर, ब्लॉक ऑफ 4 years मिलता था. वो लीव ट्रेवल कंसेशन की एग्जेम्पशन नहीं ले सकेंगे, LTC नहीं ले सकेंगे सेक्शन 10(5) की. नेक्स्ट 10(13)A, हाउस एंड अलाउंस जो एग्जेम्प्ट हुआ करता था, होता था ना, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% द सैलरी, 40% और 50% द सैलरी एज द केस में भी, वो हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट नहीं होगा, आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. नेक्स्ट, जो 10(14) में एग्जेम्प्ट होती थी अलाउंसेस, 10(14) में अलाउंसेस होते हैं एग्जेम्प्ट. अगर आपको हो यूनिफॉर्म अलाउंस अलाउड है, मील अलाउड है, आपको 10(14) में अलाउड है, कन्वेंस अलाउंस अलाउड है, या TA अलाउंस है, DA अलाउंस है. उसमें भी कह दिया रुकिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ दिव्यांग को मिलेगा, बाकियों दिव्यांग वालों को तो मिलेगा, बाकियों को कोई डिडक्शन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो तो अभी भी खत्म कर चुके हैं. ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो खत्म कर चुके हैं, ऑलरेडी पता है. वो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई थी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस खत्म कर दिया था. आपको कन्वेंस अलाउंस मिला है ऑफिशियल ड्यूटी का, सिर्फ वो माफ होगा. आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिला है फॉर गोइंग आउटसाइड इंडिया, सिर्फ वो माफ होगा, सिर्फ वो माफ. और डे टू डे एक्सपेंसेस मिले हैं, सिर्फ वो माफ, और कोई माफ नहीं होगा.
कुछ भी माफ नहीं होगा। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और हाई एल्टीट्यूड अलाउंस वगैरह सब बंद कर देंगे। और उसके साथ साथ कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 थी नहीं मिलेगी, कोई एक्सपेंडिचर और एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई एक प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो भी नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ ATC नहीं मिलेगा, ATD नहीं मिलेगा, ATE नहीं मिलेगा, ATEA नहीं मिलेगा, कोई भी सेक्शन नहीं मिलेगा चैप्टर 6A का सिवाय ATJJAA। मतलब जो आपको ATTTA मिलता था 10,000 रुपये, आपको ATTT भी मिलता था 50,000 रुपये, वो भी नहीं मिलेगा। एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट मिलता था, वो भी कुछ भी नहीं मिलेगा। दे दो ना, सिंपल हो गया लॉ। टैक्स दो, जान छुड़ाओ। एक तरफ बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन, अरे वेल्थ क्रिएशन कहां से होगी? वेल्थ क्रिएशन, मैं इंप्लॉय हूं, मेरा प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन कंपलसरी है 12%, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। वो तो ATC में मिलती थी, नहीं मिलेगी आपको। कहते हैं जी, यंग लड़के कहते हैं हमें ATC नहीं चाहिए, हम अपने आप करेंगे, हमें क्या करना है। मैंने बात करी है, क्या करनी है? तो वो कहते हैं हमारी सैलरी 50-15 हज़ार से ऊपर है, प्रोविडेंट फंड भी हम कवर्ड नहीं है, हम क्यों जमा कराएं प्रोविडेंट फंड? हम तो पैसा लाएंगे, खर्चेंगे, ऐश करेंगे। अच्छा ठीक है, कर लो ऐश, इतना होगा। मैक्सिमम बेनिफिट कितना मिला है? 75,000 रुपये का। अगर आप 15 लाख से ऊपर हैं तो यू गेट ए बेनिफिट ऑफ 75,000। लेकिन लॉस कितना हुआ है मेरे का? देखिए लॉस कितना हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं नए लॉ में जाता हूँ तो पहला लॉस मुझे हुआ कि मुझे ATC 1.5 लाख नहीं मिलेगा, राइट सर। मुझे ATD नहीं मिलेगा, 50,000 जो मिलता था वो भी गया। मुझे ATCCD भी नहीं मिलेगा, जो 50,000 रुपया एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करता था, वो भी गया, वो भी मेरा गया। मुझे नहीं मिलेगा वो रिकॉल ATQQB, जो मुझे 3 लाख रुपए मिलते थे, वो भी गया। मुझे नहीं मिलेगा अगर मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और उसमें मुझे अगर वो 2 लाख का वो मिलता था इंटरेस्ट का डिडक्शन, वो भी नहीं मिलेगा। अरे मेरी लेट आउट प्रॉपर्टी है लेकिन मेरा इंटरेस्ट अगर वो उसमें लॉस आ रहा है तो वो भी नहीं मिलेगा किसी हद से। क्या मिलेगा? कुछ भी तो नहीं मिलेगा। मैंने कैलकुलेट किया कि मैं नए रेजिम में जाता हूं तो मुझे इतना बड़ा नुकसान होगा, 75,000 का फायदा लेते हुए कम से कम 2.5 लाख का नुकसान करना। कौन जाएगा? हर साल डिसाइड करना पड़ेगा सर आपको। कोई लॉस नहीं मिलना है हाउस प्रॉपर्टी का सेल्फ ऑक्यूपाइड वालों को। जो 2 लाख मिलता था वो नहीं ले सकेंगे। अगर लेट आउट है तो जितना इंटरेस्ट है उतना मिलेगा जितना इनकम है। इनकम से ज्यादा अगर उसका लॉस है तो वो नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट की वजह से लॉस है वो नहीं मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। तो क्या होगा? सिंपल है ना सर, कुछ करना ही नहीं, किताबों में ध्यान भी नहीं रखना, कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी, चुप करके लो पैसे ये टैक्स दे दो, कुछ नहीं करना। सर जब मैंने कह दिया कोई डिडक्शन चैप्टर 6 एक ही नहीं मिलेगी तो 80 चीज के कोई खास बात है? कुछ भी नहीं मिलना। मतलब वही काम करते थे ना, वो देकर पैसे वापस लेना, वो तो बंद ही कर दिया। 80 चीज तो मिलना ही नहीं है, वो भी नहीं मिलेगा। कोई भूल जाओ ना, चुप करके जो कमाओ टैक्स दे दो, इससे ज्यादा बात नहीं करो। ये टैक्स दे दो जो कमाना है और वो जो मर्जी करो, कंजम्पशन करो, लूटो फूटो ज्यादा, लेकिन आपको मेडिकल भी नहीं मिलना। मिलना क्या है ये मुझे बता दो? कुछ नहीं मिलना। और स्टैंडर्ड एक्शन भी गई, सैलरी वाले की तो स्टैंडर्ड एक्शन भी गई। अरे बचा क्या है सर? कुछ नहीं मिलेगा। और ले लो ये टैक्स दे दो। अब आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, हर साल आप डिसाइड करेंगे कि मैं नए रिजीम में जाऊं कि पुराने रिजीम में जाऊं। हर साल डिसाइड कर सकते हैं बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। लेकिन मर तो एम्प्लॉयर गया, उसको कैसे TDS काटना है? जब एम्प्लॉयर को TDS काटना है तो वो पूछेगा ATC ले रहे हो, स्टैंडर्ड एक्शन ले रहे हो, या ये ले रहे हो कि नहीं ले रहे? क्या करेगा एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर को पहले आप अंडरटेकिंग देंगे। अगर आपने अंडरटेकिंग दे रहे हैं ले रहा हूं, और उसके बाद अगर नहीं लेता तो आपको उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप कहते हो मैं नहीं लूंगा और बाद में दिल कर गया लेना है तो लाओ भैया, ये तो उसको भी फंस गया, ये क्या कर रहे हैं?
You can change your option every time, but let me tell you, every employer will be put into difficulty because at the time of deduction every month, he will ask you, please give me whether you are going to go for the new regime or you are going to keep yourself in an old regime. कितना मुश्किल काम हो जाएगा. ये सिंप्लीफिकेशन है सर. इससे बड़ा सिंपल क्या हो गया. आइए आगे चलते हैं. अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जी. 87A को चेंज ही नहीं किया है, चाहे वो ओल्ड रिजीम में हो चाहे न्यू रिजीम में. तो आपको ओल्ड रिजीम में जाना फायदा है. 6.5 लाख का 1.5 लाख लेके 5 माफ हो गया, या तो 6.5 लाख है तो माफ ही नहीं होगा. तो ओल्ड रिजीम में जाओगे कि न्यू में जाओ. 87A वाला तो जाएगा ही न्यू ओल्ड रिजीम में, क्योंकि वो मोर देन 5 लाख ग्रॉस टोटल इनकम लेकर और उसके बाद डिडक्शन लेकर 5 लाख तक ला सकता है. यहाँ तो 5 लाख तक नहीं ला सकता ना. तो 87A रिमेन्स देयर एज इट इज. 12,500 5% जो भी है वो है 87A, लेकिन उसका कोई एडवांटेज होने वाला नहीं है सर. वो एडवांटेज उसी को होगा जो, हाँ, फायदा किसको कर रहे हैं? चोरों को फायदा कर रहे हैं कि आपकी इनकम है ही नहीं, बोगस इनकम दिखाइए, डिडक्शन कोई लो ना, टैक्स दे दो चुप करके, कोई पूछेगा ही नहीं. 44AD में दिखा दो इनकम, कोई डिडक्शन मत लो और उठाकर टैक्स दे दो 15 लाख के ऊपर आप, या 10 लाख 5 लाख जो भी इनकम दिखाओ, कोई पूछेगा नहीं. डिडक्शन तो आपने ली नहीं, एग्जेम्पशन तो आपने ली नहीं, और सीधा टैक्स दिया, जान छुड़ाई. मैंने कहा ये चोरों को आप वो कर रहे हो कि बोगस इनकम वाले फायदेमंद होंगे और जेन्युइन इनकम कमाने वाले डिडक्शन एग्जेम्पशन ले नहीं सकते, क्योंकि बोगस वाले एग्जेम्पशन डिडक्शन लेंगे ही नहीं. वो तो हमें तो टैक्स इतना वाइट करना है, वाइट कर लेंगे. 5 लाख दिया टैक्स देंगे, 5 लाख तो पूरा ही माफ है, 5 लाख वाला तो पूरा ही माफ है, और उससे ज़्यादा होगा तो जो टैक्स देंगे बाकी उसकी इनकम वाइट होगी. What are you doing? You are encouraging those persons who are not earning real income and they are showing bogus income, और उसको आप कर दिया एडवांटेज कि वो इसका एडवांटेज ले सकते. फेल टू अंडरस्टैंड क्यों करा, ये उनको पता है सर. बट ये कोई फ़ायदा होने वाला बहुत कम को है, बहुत मैक्सिमम फ़ायदा 75,000, लेकिन फ़ायदा उनको है जो बहुत अमीर हैं, जिनको कोई वो नहीं देना था, वो को लेते नहीं है ये बेनिफिट. ATC वो नहीं लेते. उनको क्या होगा, 75,000, अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो 37% सरचार्ज भी बचेगा उसके ऊपर, और 4% एजुकेशन से. उनको तो 1,15,000 रुपये का फायदा हो जाएगा जो 2 करोड़ से ऊपर है. और जो 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ से ऊपर से 5 करोड़ से ऊपर है, जो 2 करोड़ और 5 करोड़ में, उनको भी 89,000 रुपीज़ का फायदा हो जाए. 75% प्लस उस तरह उनको फायदा हो रहा है, या गरीब आदमी को फायदा हो रहा है. बीच वाले तो बिल्कुल ही कहे. आई एम टेलिंग यू, गरीब आदमी मीन्स जिसकी इनकम ही कोई नहीं है, जो उसको कैपेसिटी नहीं है सेव करने की. ATC कहाँ से लेगा, है ही नहीं उसके पास देने के लिए, तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा. उसको तो टैक्स दे दिया जान के, 5% दिया, 10% दिया, जान छुड़ा दी. अल्टीमेटली इनका एम है कि सारी एग्जेम्पशन हटाकर, सब कुछ हटाकर टैक्स सिर्फ 15% कर देंगे. अगर ये कर दे तो हमें बुरी बात नहीं लगेगी, लेकिन पहले करो तो सही. ये वाले में तो आपको वेल्थ क्रिएशन तो खत्म. ATC को लेते थे हम, ज़बरदस्ती सेव हो जाता था, ज़बरदस्ती सेव करते थे. अब क्या करें, ATC वगैरह हाउस उसमें ले लेना, HUF में, और इनकम टैक्स न्यू रिजीम में दे देना. मेरे समझ में आया मैंने क्या कहा? चलिए सर आगे बढ़ते हैं. वो कंटिन्यू करेगी सर. उसमें सिर्फ यही है कि अगर आपकी नॉन बिजनेस इनकम है तो हम हर साल ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं. अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको किसी भी साल, आज करो 2 साल बाद करो, एक बार कर सकते हैं. और वो करोगे तो फिर कंटिन्यू पुराने नई रिजीम में जाना पड़ेगा. लेकिन एक चांस दे दिया है, बाद में आप सोचो यार मैंने गलती कर दी, तो एक बार लाइफ टाइम में वापस आ सकते हैं और दोबारा वापस दिया. ये तो उन्होंने लिखा है सैलरी नॉन बिजनेस इनकम वाला. प्लीज नोट द वर्ड बिजनेस लिखा है, प्रोफेशन नहीं लिखा है. बिजनेस लिखा है, प्रोफेशन नहीं लिखा है. प्रोफेशन वाला तो हर बार चेंज कर सकता है. अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं लिखा है, हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखा है. दे शुड हैव रिटन बिजनेस एंड प्रोफेशन. देन मैं नहीं कर सकता. तो अब मैं तो प्रोफेशन करता हूं, मैं बिजनेस करता नहीं हूं. मैं हर साल चेंज कर सकता हूं, ये इधर लूं कि उधर लूं, लेकिन हर बार बैठना पड़ेगा. हर रिटर्न जो भरेगा एसएससी, सैलरी वाला है या नॉन सैलरी वाला है, जो बिजनेस का नहीं करता है, हर साल उसको डिसाइड करना पड़ेगा कौन से में जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं. जहां भी जाऊं मरना ही मरना है. मैं आपको बता दूं बड़ी मुश्किल आने वाली है,
क्योंकि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन विच दे हैव कम आउट. इट इज नॉट सिंपल. इट इज गोइंग टू बी पुट इन टू लॉट ऑफ डिफिकल्टीज फॉर एम्प्लॉयर्स ऑल्सो एंड फॉर यू ऑल्सो. ये प्रॉब्लम आने वाली. कमिंग बैक 115B8D, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अभी तक टैक्स लगता है ऑन द फर्स्ट 10,000 10%, ऑन द नेक्स्ट 10,000 20%, द बैलेंस 30%. लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपको पता है ATP की डिडक्शन भी मिलती है. अंडर ATP 1A B C D चार्ज 100% डिडक्शन मिलती है कोऑपरेटिव सोसाइटी. अब क्या कहा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ऑल्सो बीन गिवन एन ऑल्टरनेटिव. दे मे पे टैक्स under section 115B8D at the rate of 22%. क्योंकि कंपनी भी 22 दे रही है तो इनको भी 22 का बेनिफिट दे दिया है. लेकिन वही सारी कंडीशन रखी है और ये भी लिख दिया है ATP नहीं मिलेगा. जब ATP मिलेगा ही नहीं तो फिर उसको फायदा क्या होगा? यू विल नॉट गेट ATP, यू विल गेट ओनली 80JJAA. ATP डिडक्शन नहीं मिलेगी. और बाकी डिडक्शन तो आपको पता है जो 115BAA में थी, BAB में है, BA, वो सारी की सारी वहाँ रिपीट कर दी गई. सो मीनिंग क्या भाई? कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू चॉइसेस. वन, पे टैक्स अंडर द ओल्ड regime by taking a benefit under section ATP. Non-cooperative society going to new regime, pay tax as per new rates 22% plus but no deduction under ATP. फायदा हुआ कोऑपरेटिव बैंक्स को, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक को कोई डिडक्शन मिलती नहीं थी ATP में. ना कोऑपरेटिव बैंक विल नाउ लाइक एनी अदर बैंक विल नाउ पे टैक्स एट द रेट ऑफ 22% प्लस सरचार्ज 10% प्लस एजुकेशन सेस 4% अमाउंटिंग टू वही 25.168%. उनको फायदा. बाकी कोऑपरेटिव साइड को देखना पड़ेगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. रिवर्सल है इसमें, कुछ नहीं लिखा जो यू कैन है. Once option exercise will get. Once option exercise is gone. It's gone. Like company, same like company. Once exercise, you will not be allowed. Coming back, sir. Next point. देखिए, एक सेक्शन 55 है और एक सेक्शन 56 to 10 है. 40. मैं पहला बात बता रहा हूँ. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको पता है हमें अलाउ कर दिया था कंसेशन 5% का. दैट इफ योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 105% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव, यू कैन शो द एक्चुअल कंसिडरेशन इंस्टेड ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. मतलब अगर मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ रुपया है और मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन 95 लाख है, मैं 95 में 5% ऐड करूँ, 95 में नहीं होगा, वो तो रह जाएगा करोड़ से कम रह जाए. 96 करता हूँ, अब हो जाएगा ना. इधर करोड़ है, इधर 96 है, तो 5% जोड़ूं तो ये 1 करोड़ से नीचे नहीं रहेगा सर, ये तो ऊपर निकल जाएगा. 5% अलाउड है, यस, एक निकलेगा तो मुझे 96 ले सकता था. 96 अब 91 तक ले सकते हैं. 1 करोड़ है, 91 में 10% जोड़िए 110, 1 करोड़ से ऊपर हो गया तो आप 91 दिखा सकते हैं. 91 1 करोड़ तक है तो वो अलाउड है. यू कैन डू दैट एक्सरसाइज. 10% का आपको रिलीफ मिल गया कि अगर स्टैम्प ड्यूटी पहले डज नॉट एक्सीड दिस, you will be allowed to take a benefit of 10%. ये 43CA में भी चेंज आ गया, 50C में भी चेंज आ गया, 56 to 10 में भी चेंज आ गया. सब जगह वही डाला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला पॉइंट जो आपको क्लियर कर. नेक्स्ट पॉइंट. अब प्रॉब्लम आती थी कि नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 2001. 1 अप्रैल 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी थी. अब लैंड एंड बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालें? हम क्या करते थे, सर्टिफिकेट ले लेते थे अथराइज रजिस्टर्ड वाले से और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, हाँ सॉरी फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू लिखी थी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं लिखी थी, फेयर मार्केट वैल्यू, और हम उसकी नॉर्मली ज़्यादा ले लेते थे. अब लिख दिया है वेयर एवर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज अवेलेबल यू विल हैव टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. जहाँ अवेलेबल नहीं है वहाँ आप करा सकते हैं, जहाँ अवेलेबल है वहाँ पर आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी. आप ज़्यादा ले ही नहीं सकते. ये हमारे फेवर में नहीं आया है, उनके फेवर. इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज अवेलेबल, फॉर दैट ऑन 1 April 2001 टेक द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज फेयर मार्केट वैल्यू. इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज नॉट अवेलेबल देन यू कैन गो टू द रजिस्टर्ड एंड गेट इट वैल्यूड. क्लियर सर? ये 55 में चेंज आया जो मैंने आपको बता दिया.
ये इंपॉर्टेंट चेंज था जो मैं आपको बताना चाहता था कि ये अब कोई फ़ायदा नहीं है रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट से, आपको कोई फ़ायदा लेने का फ़ायदा नहीं है। कमिंग बैक, हाँ बेटा, किसके सर्कल रेट दिल्ली में नहीं है ना, नहीं है सर। आप सिर्फ दिल्ली नहीं मैं बोल रहा, मैं तो पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ, कईयों में है कईयों में नहीं। हमने तो रिकमेंड किया था 1 अप्रैल 2006 कर दीजिए इसको, क्योंकि 2006 में सब जगह आ गया था। हमारी रिकमेंडेशन कुछ और थी कि मेक इट टू 1 अप्रैल 2006 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, बिकॉज एट दैट टाइम द रेट हैड कम, सो यू कैन टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। उनको वो पसंद नहीं आया, उन्होंने कह दिया वेर एवर अवेलेबल, अब वो ले लीजिए, जहाँ अवेलेबल नहीं था वहाँ वैल्यूएशन करा लीजिए। ठीक है जी, कमिंग बैक, दिस इज प्रोस्पेक्टिव है सर, प्रोस्पेक्टिव है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 होगा, 21-22 प्रोस्पेक्टिव है, कोई रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, 21-22 ये है। कमिंग बैक, नेक्स्ट चेंज सर, मैं पहले टीडीएस के कुछ प्रोविजन कर लूँ जहाँ मुझे बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, और टीसीएस के प्रोविजन कर लूँ। हमारे यहाँ टीसीएस का 206CC ले रहा हूँ, जिसमें 206CC में 1G एंड 1H इंसर्ट कर दिया है, सब सेक्शन 1G एंड 1H इंसर्ट किया है। आपको पता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यू कैन सेंड रेमिट $250,000 without any problem. No permission required. You can transfer $250,000 to any country outside India, $250,000. No question asked. अब इन्होंने क्या कर दिया है, अगर आप 7 लाख से ज़्यादा, 7 और 7 से ज़्यादा रेमिटेंस बाहर भेजेंगे अंडर लिबरलाइज्ड स्कीम, the authorized dealer will have to collect TCS from you at the rate of 5%. मैं 1 करोड़ रुपया भेजना चाहता हूँ बाहर, अपने बच्चों की पढ़ाई का, अपनी बेटी को गिफ्ट देना या कुछ भी देना है, लिबरलाइज स्कीम में $2.5 लाख अलाउड है, मैं 1 करोड़, 5% तो TCS कट जाएगा, 5 लाख रुपया मेरे से वो कलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे टैक्स दे दो। वो ठीक है, मुझे क्रेडिट मिलेगा, लेकिन कई बार मेरी इनकम ही नहीं है तो क्रेडिट कहाँ से लूँगा, रिफंड मांगूंगा। इनकम है तो मेरे 5% इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, 5% इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, क्योंकि $2.5 लाख तो करीबन 2 करोड़ के करीब कितने हो जाते हैं, 1 करोड़ 75 लाख, 1 करोड़ 80 लाख हो जाता है। अगर मैं 5% कहाँ पे और दूंगा, पहले पैसे लाऊं और टैक्स दे दूं, बाद में रिफंड करता रहूं। अगर मेरी इनकम नहीं है, अगर इनकम भी है तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि एडवांस टैक्स देते हुए उसका भी बेनिफिट ले लूँ मैं, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और मैं पैकेज टूर में जा रहा हूँ, जाइए पैकेज लेते हैं आप, पैकेज जो ये ऑफर करते हैं टूर ऑपरेटर, कॉक्सन तो मर गया, आगे की बात करता हूँ, दूसरे जितने भी अगर पैकेज अपलोड करते हैं उस केस में वो भी 5% TCS कलेक्ट करेंगे ऑन द अमाउंट में। पैकेज टूर में जाएंगे 5% वो भी TCS कलेक्ट करेंगे। अरे यार, आपने चेक करना तो 1% रख देते ताकि डिटेल आ जाती, बातों को दिक्कत नहीं, वो भी 5% करेंगे कलेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1H है जी, 7 लाख लिबरलाइज स्कीम में 7 लाख, लिबरलाइज में 7 लाख एंड मोर है तो काटना है, 7 लाख से कम भेजा तो 7 लाख अगर बच्चे की पढ़ाई के लिए भी भेजो तो 7 लाख कुछ नहीं होता सर। क्या होता है 7 लाख पर बच्चे की पढ़ाई में? एक बताओ, क्वार्टर की सैलरी वो है, एक क्वार्टर में उसकी 30 लाख रुपया वो है, क्या कहते हैं, ट्यूशन फी है, तो व्हाट इज 7 लाख? 7 लाख के अलावा आप बच्चे की पढ़ाई के लिए भी भेज रहे हैं तो आपको उसमें TCS काटना है। आप नहीं भेजो बड़ा TCS काट के, और TCS कलेक्ट करेगा वो ऑथराइज डीलर आपसे। कमिंग बैक, हाँ जी, डीलर हम नहीं सुधरेंगे। सर वो वही है, कहीं ना कहीं वो भी आ जाएगा, डिक्लेरेशन ले लेंगे, कोई चिंता नहीं। हाँ पेन बेस्ड है, और पेन से लिंक हो जाएगा। यस इट इज पेन बेस्ड, वैसे भी लिंक हो जाएगा पेन से। पेन बेस्ड इज ऑलरेडी लिंक्ड, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, इट इज पेन बेस्ड सर, ही इज राइट, इट इज पेन बेस्ड, सो इट विल नॉट बी अलाउड। What dealer?
डीलर विल कलेक्ट अनलेस यू प्रूव दैट इट इज लेस देन, ये नहीं है। डीलर तो कहेगा मैंने तो काटना है भैया, मैंने तो कलेक्ट करना है तेरे से, मैं नहीं दूंगा, भेजूंगा नहीं है जी। अरे पैन बेस्ड है ना, वो चेक कर देगा, वो आप अंडरटेकिंग देंगे ना, आपसे कलेक्ट करेगा तो आप ही अंडरटेकिंग देंगे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना आप, तो फिर पहले आप भी फंसेंगे। अरे डीलर आपसे अंडरटेकिंग लेगा कि दैट यू हैव नॉट सेंट ड्यूरिंग द ईयर मोर देन दिस अमाउंट। सर ये चीजें माइनर है, ये बाद में, पहले लॉ तो समझ लो, तरीके पहले ही ढूंढने लग गए। ये है तो मुझे समझ में, लॉ पढ़ा नहीं, तरीके पहले ढूंढ दो। वेट करो सर, वेट करो। नेक्स्ट पॉइंट, 7 लाख इन एग्रीगेट इन अ ईयर, इन एग्रीगेट, एग्रीगेट अमाउंट 7 लाख। ऑब्वियसली टीसीएस इज ऑलवेज एडजस्टेबल, इनकम का तो वो तो होगा। अब देखिए आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, आप सेलर हैं, आप किसी को माल बेचते हो और ड्यूरिंग द ईयर उसे 50 लाख से ऊपर का कैश आता है, हाँ सॉरी अमाउंट आता है, रिसीव्ड आता है, कैश नहीं कह रहा, एनी अमाउंट विच इज रिसीव्ड विच इज मोर देन 50 लाख, the authorized seller will have to collect 0.1% as TCS। जितनों को भी आप बेचेंगे 50 लाख से ऊपर से रिसीव हुआ, मैंने अमाउंट सेल का कहा ही नहीं है, अमाउंट रिसीव्ड और क्रेडिट, तो आपको उसमें 1.1% काटना है। अगर वो पैन या आधार नहीं देगा तो 1% कलेक्ट करना है। एवरी डीलर, सिर्फ गवर्नमेंट को छोड़कर, एम्बेसीज वगैरह को छोड़कर, बायर, बाकी सब है। अभी तक तो ये क्लियर नहीं है एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा। वो लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे एग्जेम्प्ट एनी अदर बायर, तो वहां पर वो लिख देंगे कि भैया एक्सपोर्ट के केस में आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। सो सेलर मेकिंग ए सेल टू द बायर collecting payment more than 50 lakh in a year will have to collect TCS at the rate of 0.1% of the amount so received। हाँ जी, वो सब जगह होता है, जब एक लिमिट से करो उस दिन से काटना शुरू, उस दिन से ले लेगा। अगर आप कह रहे 10 से, अगर उसका 50 से नीचे था तब तक नहीं करेगा, जब 50 से ऊपर होगा तो पिछला भी कटेगा, पिछला भी कलेक्ट करेगा। है जी, रिसीट लिखा है वहां, अमाउंट रिसीव्ड फॉर द कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। है जी सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। है जी, प्रॉपर्टी गुड्स है, इज इट गुड्स, आई डोंट नो। प्रॉपर्टी केस में टीडीएस ऑलरेडी है, वहां लिख दिया है, जहां पर ऑलरेडी टीडीएस के प्रोविजंस हैं वहां पर ये नहीं कटेगा। वहां तो आपकी जब प्रॉपर्टी निकलता है तो 1% तो कटता ही है, तो टीडीएस हो गया, वहां पर कुछ नहीं होगा। वेयर एवर द प्रोविजंस ऑफ टीसीएस और टीडीएस आर नॉट गिवन देन इट विल बी कवर्ड। ऐसा तो स्क्रैप पे ऑलरेडी टीडीएस है, टीसीएस है, तो उसके लिए थोड़ी होना है। और कई आइटमों पे टिम्बर ये वो पे टीसीएस है, वहां लिख दिया है जहां पर ऑलरेडी प्रोविजन ऑफ टीसीएस है और गुड्स वो नहीं लेना है। या प्रॉपर्टी में भी ऑलरेडी टीडीएस के प्रोविजन है तो वो नहीं लेना है, वो तो ऑलरेडी कवर्ड है, वो तो सिर्फ कवर कर रहे हैं इन लोगों को। आइए अब टीडीएस पे आते हैं जी। बैंक में कौन से गुड्स आ गया यार, गुड्स के लिए कर रही है, तो सेल ऑफ गुड्स है भैया, ये बैंक को एडवांस थोड़ी देता है। हाँ, ये कह रहे हैं कि आपने भाग जाना है और क्वेश्चन रह, कई टॉपिक रह जाएगा और क्वेश्चन ना ले, और वैसे भी ले लूंगा तो मुझे कौन सा आता है। चलिए सर, आज नहीं पता है, चलिए आइए नेक्स्ट डे। देखिए 192 में चेंज आया है। अगर आप एक स्टार्टअप यूनिट है, स्टार्टअप यूनिट, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट छूट गया, पहले वो बता दूं, भूल ना जाना। कंट्रीब्यूशन बाय दी, देखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है 12% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, और यहाँ 80 CCD में कंट्रीब्यूट, नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है, सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है, यू नो दैट। तो क्या होता था, 12% ऑफ सैलरी तक का कंट्रीब्यूशन इट वॉज एग्जेम्प्ट एज पर शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में ICICI था 12% तक एग्जेम्प्ट होता था, और इंटरेस्ट अप टू 9.5% एग्जेम्प्ट होता था। आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, नॉट द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब लोग क्या करते थे, 2 करोड़ सैलरी है,
12% 24 लाख रुपया प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयर करता था। 24 लाख, 12% ऑफ 2 करोड़, और वो 24 का 24 ही माफ होता था। उसके साथ साथ सुपर एनुएशन फंड में भी 1.5 लाख रुपया माफ होता था। अब क्या कर दिया, कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और टू सुपर एनुएशन फंड और to this pension fund can be 12% of the salary subject to maximum of 7,50,000. 7,50,000 मतलब 7.5 से ऊपर, अगर 7.5 लाख के ऊपर से ऊपर अगर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया तो बैलेंस परक्विजिट माना जाएगा। अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7 में उसको परक्विजिट मान लेंगे। सपोज कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर है 20 लाख रुपया, कितना अलाउड होगा, 7.5, 12.5 लाख आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। और सेकंड 7A में क्या लिखा है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, कौन सा इंटरेस्ट, वो एक्सेस अमाउंट पर, वो भी टैक्सेबल होगा एज पर कुछ एक्सेस अमाउंट पर, नॉट दी 7.5 लाख तक, उसका जो इंटरेस्ट है वो माफ है, लेकिन इससे ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। ये 17(2) की परक्विजिट की डेफिनेशन चेंज करके सैलरी में इंक्लूड कर दिया है। वो तो मेथड प्रिस्क्राइब है, आ जाएगा, मेथड कर देंगे वो कैसे करना है। सो आर यू नोटिसिंग माय पॉइंट, जितने भी बड़े बड़े एम्प्लॉइज हैं वो 7.5 लाख से ऊपर अब प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, पेंशन फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो बाकी उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। लिमिट लगा दी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। हाँ जी, तीनों मिलाकर 7.5, तीनों मिलाकर 7.5। ये 17(2) की में डाला है, इनकम परक्विजिट इंक्लूड्स। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10% करता है, 10%। आपका अपना कंट्रीब्यूशन तो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में जाना है। आपका अपना कंट्रीब्यूशन तो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में मिलना नहीं है, ओल्ड रिजीम में आपको वो मिलना है। आपको सोच लीजिए अपना कंट्रीब्यूशन तो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में चला गया, वो छोड़ दीजिए। मैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कह रहा हूं, वो भी गया। अब एम्प्लॉयर स्टार्टअप है, ईसॉप दिए है उसने। अब ईसॉप तो दिए, लेकिन ईसॉप का टैक्सेबल होती है 2 जगह पर। एक एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, आपको उसको परक्विजिट माना जाता है। उसके बाद व्हेन यू सेल इट, द डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस एंड द मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, वो कैपिटल गेन माना जाता है। लेकिन वो कहता है मुझे ईसॉप तो दे दिया, मेरे पास पैसे ही नहीं है देने के लिए, काइंड का है, आपने परक्विजिट मान लिया, मेरे पैसे नहीं है देने के लिए। और सेकेंडली एम्प्लॉयर कहता है इसके ऊपर टीडीएस कैसे काटूं, तो अब उसने बोल दिया कि आपको टीडीएस इसको जो काटना है 192 में, अगर वो आपके पास है तो 48 मंथ्स के बाद काटना है, 48 मंथ्स के बाद। आई एम राइट। और अगर आपने छोड़ दी नौकरी तो फिर उस साल काटना है जिस साल आपने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, इफ यू हैव लेफ्ट द एम्प्लॉयमेंट। और इफ यू हैव ट्रांसफर्ड दोज ईसॉप्स तो भी उस साल काटना है जिस साल आपने ट्रांसफर किए, अदरवाइज इसका टीडीएस कटेगा बाद में। ये बड़ी एक उसमें गड़बड़ा है, एट द रेट इन फोर्स, वो क्या होगा वो मैं बाद में देखूंगा। वो लगता है कहीं ना कहीं मिस्टेक चली आ रही। आगे चलता हूं। ओनली स्टार्टअप, ईसॉप फॉर स्टार्टअप, बाकी का सेम सिस्टम है जो पहले का था, ओनली फॉर स्टार्टअप के लिए किया है। अब आया 194, आपको पता लग गया, सबने बताया कि डिविडेंड ना, ये तो हमका रिकमेंडेशन थी, हम लोगों ने रिकमेंड किया था, लेट अस गो टू द क्लासिकल सिस्टम ऑफ डिविडेंड। The classical system was, it was taxable in the hands of the recipient, क्योंकि चोपड़ा जी ने भी बताया कि अब डिजिटली अब तो स्ट्रांग हो गए, सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सो वेयर इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल ये हमने बोला था कि इसको शिफ्ट कर दीजिए। फायदा किसको हुआ, एक तो वो जिनका ब्रैकेट कम है, अगर उनका ब्रैकेट 5% का है या 10% का है या 15 का है या 20 का है, नाउ दे विल हैव टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम, वाइल इंक्लूडिंग दैट इन टोटल इनकम में वो इंक्लूड करके 5 देंगे या 10 देंगे स्मॉल इन्वेस्टर। फायदा इसका नहीं था, फायदा फॉरेन कंट्री का था, जो आपने रियलाइज नहीं किया। एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या एफडीआईज है, यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है। डिविडेंड कौन देता था, कंपनी। व्हेन द डिविडेंड वाज पेड बाय कंपनी एट द रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20%, तो उनको फॉरेन कंट्री में उसका टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था।
वो कहते थे आपने थोड़ी दिया है टैक्स, टैक्स तो कंपनी ने दिया है, सो यू विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी टैक्स क्रेडिट ऑफ एनी डिविडेंड टैक्स पेड इन इंडिया। अब क्या होगा, डिविडेंड किसके हाथ में टैक्स होगा, उस कंपनी के हाथ में टैक्स होगा। दे विल पे टैक्स इन इंडिया, सिंस दे हैव पेड टैक्स इन इंडिया दे विल गेट द क्रेडिट ऑफ दैट टैक्स व्हिच पेड इन इंडिया इन द फॉरेन कंट्री। इसलिए ये करा गया, मेजर काम किया था कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी। वो कह रहे थे हमें जो डिविडेंड मिलता है हमारी कंट्री में टैक्स लगता है, क्योंकि यहाँ तो हमें रिबेट मिलेगी नहीं, क्योंकि हमने टैक्स दिया ही नहीं है, वहाँ टैक्स लगता है। ऑल्दो इट इज एग्जेम्प्ट इन इंडिया बट इट इज टैक्सेबल इन फॉरेन कंट्री। अब क्या होगा, it is not exempt in India, it is taxable in India. You pay tax here and whatever tax you have paid, you will get a relief of that tax in that foreign country. एक इसके लिए किया। मेरा जैसा आदमी तो मारा गया। क्यों मारा गया? पहले क्या होता, हमारा डिविडेंड लेट से 10 लाख से कम में पूरा एग्जेम्प्ट था। कितने % देते थे? 20%। अब कितना देना पड़ेगा? 30% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस ऑल्सो 35%। वही चलो चलो ना बताओ मेरी कितनी इनकम है, छोड़ दो ना, ये बात क्यों बता रहे, लेकिन वो देना पड़ेगा सर डिविडेंड, उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। और पहले 10 लाख तो माफ भी था। अरे 10 लाख से ऊपर वाले भी जो थे उनका 10 तो माफ था, 10 के ऊपर 10% देना पड़ता था और 10% के ऊपर ही सरचार्ज लगता था, बाकी में थोड़ी लगता था। तो सरचार्ज वॉज ओनली ऑन 10% जितना भी था। नाउ ऑन 30% सरचार्ज प्लस है, सब मारे जाएंगे जो इन्वेस्टर हैं, सिर्फ स्मॉल तो बचेंगे। लेकिन मैं भी स्मॉल नहीं हूँ सर, ज़्यादा बिग नहीं, लेकिन मुझे देना पड़ेगा। आपको भी डिविडेंड जो आता है अब आपको देना पड़ेगा टैक्स। इतने शेयर मेरे को खिदवा दिए इन्होंने, कह कह के मरवा दिया मेरे को, और कहते हैं मेरे पास कोई शेयर ही नहीं है। ऐसा मत बोलो सर, ऐसा मत बोलो। जितना डिविडेंड इनके पास आएगा अब इनको 30% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन टैक्स देना पड़ेगा। वो 10 लाख से कम है मुझे पता है, लेकिन अब तो देना पड़ेगा। पहले तो माफ था, अब आपको देना पड़ेगा सर। ये भी नोट कर लीजिए डिविडेंड का जो आया। हाँ जी, बेचोगे तब जब प्रॉफिट होगा, लॉस ही लॉस है। वो लॉस कहाँ से ले लेंगे? मैं तो कभी करता नहीं था, मरवा दिया इन्होंने। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। शेयर मार्केट में किसी ने नहीं कमाया और कल से तो वैसे ही हार्ट अटैक हो रहा है और नीचे चला। कमिंग बैक सर। अब देखिए 194 में अब तो टीडीएस कटेगा व्हेन द डिविडेंड इज पेड। व्हेन द डिविडेंड इज पेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट द टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10% प्रोवाइडेड द अमाउंट पेड और क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड्स ₹5। अप टू 5,000 कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 5,000 से ऊपर होगा तो 10% टीडीएस काटेगी कंपनी अंडर सेक्शन 194। तो 10% टीडीएस कटेगा सर आपका। वो 10% क्रेडिट आपको मिल जाएगा, वो तो दिक्कत नहीं है, बट 10% टीडीएस टू बी डिडक्टेड अंडर 194। दिस इज द पॉइंट विच वॉज नॉट देयर। नाउ फॉर एवरीवन दे विल डिडक्ट 10%। सेम, बिकॉज 1034 1035 में जो एग्जाम्पशन थी खत्म हो गई। 1034 में एग्जाम्पशन थी डिविडेंड की, सेक्शन 1035 में एग्जाम्पशन थी यूनिट की, डिविडेंड फ्रॉम यूनिट, दोनों खत्म हो गया। 115 और 115 आर दोनों खत्म हो गए हैं। तो इसलिए अब जो भी डिविडेंड मिलेगा या फिर यूनिट से उसके ऊपर 10% टीडीएस कटेगा। 10% अगर वो मोर देन 5,000। सेक्शन अलग है उसका, यूनिट्स का। इसका सेक्शन 194 है, उसका सेक्शन 194 नहीं है, 194 के है जो नया डाला गया है। 194 के है, राइट सर? 194 के है, वो 94 के है, ये 194 है। डिविडेंड फ्रॉम कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम यूनिट, दोनों में 5,000 से ऊपर है तो आपको टीडीएस 10% कटेगा। जो 5% वाले हैं उनको तो रिफंड देना पड़ेगा क्योंकि वो 10% कट गया टीडीएस। तो ये वाला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ 194 में चेंज आई। 194A कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कॉर्पोरेट देती थी तो उस पर टीडीएस नहीं कटता था, लेकिन कह दिया है अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का टर्नओवर अगर उसकी टोटल 50 करोड़ से ऊपर है और 50,000 से ज़्यादा वो देना है तो उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। पहले टीडीएस नहीं काटते थे, अब उनको भी टीडीएस काटना पड़ेगा। ये टीडीएस का प्रोविज़न और आया जो आपको बता रहा हूँ। 194O ये कमाल का प्रीवियस है। देखिए, एक होते हैं ई ऑपरेटर, एक होते हैं ई पार्टिसिपेंट। ई ऑपरेटर जो हैं जो डिजिटली बेचते हैं और ई पार्टिसिपेंट है जो माल सप्लाई करते हैं ऑपरेटर को और ऑपरेटर आगे बेचता है। सो ई पार्टिसिपेंट और ई ऑपरेटर। अब ई ऑपरेटर while making payment to e participant or crediting the payment to the e participant,
will have to deduct TDS at the rate of 1%. ई पार्टिसिपेंट को जो मैं पेमेंट करूंगा, ई ऑपरेटर उसमें 1% काटेगा, प्रोवाइडेड वो 5 लाख से ऊपर का मेरा ट्रांजैक्शन एग्रीगेट से ज़्यादा है। 5 लाख तक नहीं काटना, लेकिन ई पार्टिसिपेंट का अब TDS कटेगा और 194O सेक्शन आ गया। सो एवरी ई ऑपरेटर will deduct the TDS at the rate of 1% at the time of making payment or credit to the account of the e-participant at the rate of 1% provided the not applicable if it is the transaction not more than 5 lakh. ये भी आ गया सर 194O जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद कुछ नए नए पॉइंट बताता हूँ। 271AAD, अभी बत्रा साहब बोल रहे थे बोगस बिल, तो बोगस बिल वाली बात थी। यहाँ लिखा है बोगस बिल नहीं, फॉल्स एंट्री। और दूसरा, यू हैव ओमिटेड द एंट्री विच वॉज रेलेवेंट टू विच ओमिटेड द एंट्री फॉर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। एक एंट्री आपने फॉल्स कर दी, उसका एंट्री का ओमिटी नहीं करी, डाली ही नहीं है ताकि टैक्स अवॉइड हो जाए। उन दोनों केस में 271AA-D में आपको पेनल्टी लगेगी 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ दैट बिल और अमाउंट ऑफ दैट विच यू हैव नॉट शोन, 100% लगेगी पेनल्टी। उस 270AA-D में ये पेनल्टी लगनी है। रुकिए, जो ये एंट्री दिलवाएगा उसको भी 100% लगेगी, देने वाले कॉस्ट भी और कॉस्ट भी उसको भी 100% पेनल्टी 271AA-D में लग जाएगी। और एंट्री का मतलब, फॉल्स एंट्री का मतलब माल आया ही नहीं, बिल तो है माल नहीं आया। दूसरा, बिल तो है लेकिन पार्टी कौन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तीसरा, बिल तो है परचेजर ही एग्जिस्ट नहीं करता है। सब केस को फॉल्स एंट्री कह दिया। और कुछ डॉक्यूमेंट हैं, एक्सपेंडिचर है जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उसको भी फॉल्स एंट्री कर दी। डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकता एक्सपेंडिचर के, उसको भी फॉल्स एंट्री कर दिया। और ये फॉल्स एंट्री में 100% बचेगा कौन? आपको बोगस बिल है, बोगस एक्सपेंडिचर है, बोगस कोई कर रही है, और या एंट्री है जो करनी चाहिए थी डाली नहीं गई है, उस सब का आपको 271AA-D में ये पेनल्टी लग जाएगी, ये पेनल्टी लग। अब देखिए चैरिटेबल ट्रस्ट को क्या किया है। आपको पता है मैंने कहा था चैरिटेबल ट्रस्ट और साइंटिफिक रिसर्च वो अपलोड करेंगे ना उसको, सारा इंफॉर्मेशन जो उनको अमाउंट आया उसको अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट इशू करेंगे। अगर वो नहीं करते अपलोड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, 234G में 200 रुपये पर डे उसके ऊपर फीस है। और सिर्फ फीस ही नहीं है, उसके बाद उसके ऊपर पेनल्टी भी है। 271K है कि J के बाद K ही है। 271K में 10,000 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख पेनल्टी भी लगेगी, 200 पर डे वो भी होगा अगर आपने नहीं किया। तो ये भी प्लीज नोट करिए, जो भी कॉन्ट्रीब्यूट ले रहा है चैरिटेबल ट्रस्ट या रिसर्च एसोसिएशन या साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, दे विल हैव टू अपलोड द इंटायर इंफॉर्मेशन, एंड इफ दे डोंट अपलोड द इंटायर इंफॉर्मेशन तो ये दिक्कत है। और दूसरा क्या बोला गया, आगे से 26 AS कोई नहीं दिया जाएगा। यू विल नॉट गेट एनी 26 AS। 288B में डाल दिया कि सरकार खुद ही आपके उधर डाल देगी। यू विल बी सेंट ऑन योर पोर्टल द डिटेल्स ऑफ द 26 AS, यही लिखा है सर। अब कोई एक आध कोई और हो जो इंपॉर्टेंट मैंने नहीं किया तो बता दीजिए, नहीं तो मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया। और क्योंकि वो ले आए डब्बा तो मैंने कहा जाने का टाइम नज़र आ रहा है। हाँ स्टे सर, चला समाधान स्कीम जो विवाद से विश्वास, ये हमने कहा था विवाद से विश्वास। मैंने तो कुछ और कहा था कि चाहे अभी GST का आया था हुआ, मैंने कहा एक काम कीजिए, इनकम टैक्स हो, बेनामी लॉ हो, PMLA हो या कोई अदर लॉ हो, एक बार हमारे से गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, जो लेना है ले लीजिए। एक एमनेस्टी निकालिए और उस पर जो टैक्स लेना है मैक्सिमम 50% ले लीजिए, 12 महीने की इंस्टॉलमेंट कर दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे।
और जो 12 महीने से पहले देगा उसको डिस्काउंट दे दीजिए, जो 12 महीने के बाद देगा उससे थोड़ा इंटरेस्ट ले लीजिए, लेकिन जान छोड़ दीजिए। गलती हो गई, अब क्या करें, कुछ तो हमें माफ़ करो। लेकिन माफ़ एक ही चीज़ का किया, ये वाला विवाद से विश्वास। लेकिन क्या माफ़ किया, जरा ध्यान से सुनिए। जो 1/4/2016 के बाद वाले हैं और जो 1/4/2016 से पहले वाले हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर 1/4/2016 से पहले का पेनी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या कोई भी एंट्री है, उस पर टैक्स लगा होगा 30%। एम आई राइट? 30 था तब, क्योंकि 115 BBE में भी 30% था तब, प्लस इंटरेस्ट। हो सकता है 147 में हो तो इंटरेस्ट 4 साल का हो, 5 साल का, प्लस पेनल्टी जो थी आपकी, हो सकता है 200% हो अगर पूरा, या उससे पहले 100% से 300% था। वो अगर 30% दे देंगे, उनकी तो जान छूट गई, कुछ भी नहीं करना उनको। केस पेंडिंग है, 30% दे दीजिए। 30% देते ही आपको छूट गए, और ना इंटरेस्ट लगा, कितना बड़ा इंटरेस्ट था, ना पेनल्टी लगी। लेकिन अगर आप 1/4/2016 के बाद के हैं, डीमोनेटाइजेशन के हैं या कोई और है, तो टैक्स तो ऑलरेडी 77.25% है। क्या फायदा हुआ? 77.25 तो ले गए, बचा क्या? वो पेनल्टी बची 10%, वही तो पेनल्टी है 10% और 6%, और वो बचा इंटरेस्ट, लेकिन बाकी तो आपको देना ही पड़ेगा। सो पर्सन्स हु हैव टेकन रॉन्ग एंट्री, जो या जिन्होंने पनी स्टॉक किया या ओल्ड सिस्टम में, करोड़ों रुपए आएगा इनके पास, करोड़ों रुपए आएगा, मैं बता रहा हूँ। दे विल गेट लॉट ऑफ मनी। द केस इज पेंडिंग, अगर नहीं पेंडिंग है तो अपील फाइल कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, कर दीजिए कहीं भी, ITAT ये भी, कल पेंडिंग केस है तो आप अगर किसी को इंटरेस्ट दे रखा है तो इंटरेस्ट रिफंड होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने चेकअप कर लिया है। दे विल रिफंड द मनी, यू ओनली हैव टू पे टैक्स। और वो 1/4/2016 से पहले टैक्स तो सिर्फ 30% ही था, प्लस सरचार्ज जो भी होगा 30 था। लेकिन 1/4/2016 के बाद 115 BBE ने बेड़ा गर्क कर दिया है 77.25%। एम आई राइट? 77.25% तो देना ही पड़ेगा, चाहे सर्च हो, चाहे सर्वे हो, चाहे खुद डिक्लेयर कर दिया। हमने खुद डिक्लेयर किया तो भी तो 77.25 लग गया, क्योंकि पेनल्टी नहीं लगी, लेकिन वो तो दिया हमने 77.25, वो तो अभी भी दिया। तो उसको तो विवाद का विश्वास नहीं हुआ। पुराने केसेस में ये हम जरूर कह रहे हैं कि 115 BB तो चेंज कीजिए, वो आपने चेंज नहीं किया। अब सर्च भी होगा तो 77.25 पेंडिंग केस का है, नया केसों का तो है ही नहीं, तो कम से कम 115 BBE चेंज करना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई दे हैव नॉट डन इट, बट लेट मी टेल यू द एडवांटेजेस। बहुतों को लोग कह रहे हैं हमारा तो नुकसान हो गया, मतलब CA कह रहे हैं हमारे तो केस पेंडिंग के काम मिल रहा था। रवि जी कह रहे मेरा क्या होगा, मैं तो इतनी अपीलें फाइल कर रखी हैं, इतनी ITAT में कर रखी हैं, वो क्या होगा? जो होगा मंजूर खुदा होगा, करना पड़ेगा सर। उसको रिलीफ मिल गया, हर क्लाइंट को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि सिर्फ टैक्स देना है। यू डोंट हैव टू पे एनी इंटरेस्ट, यू डोंट हैव टू पे पेनल्टी। अगर पेनल्टी पेंडिंग है तो उसका 25% देना है, सिर्फ पेनल्टी है। कैसे ऐसे भी तो हो सकता है उसका लॉस था, लॉस होने की वजह से वो एडबैक हुआ, एडबैक होने से उसकी इनकम अभी भी लॉस है, तो टैक्स तो कोई बना नहीं, लेकिन पेनल्टी लगती है, उस पेनल्टी का 25% दे दो तो भी छोड़ देगी। ये भी एक नया लॉ निकाला, ये ठीक है, क्योंकि कई केसेस ऐसे हैं जिनका लॉस था और लॉस होने की वजह से इनकम ऐड भी हुई तो भी लॉस रह गया, तो उस केस में टैक्स तो देना नहीं होता, लेकिन पेनल्टी देनी होती है, तो पेनल्टी का भी 25% लगेगा। सर ये भी एडवांटेज हुआ। और अब आगे से जो अपील निकाल रहे हैं कि अपील वाले केसेस में अब अपील हुआ करेगी, पहले वो वाला तो शुरू नहीं हुआ, ये पहले ही जानती है। लेकिन उस केस में भी मैंने बोल दिया, एक 144C में बड़ा फायदा हुआ है आपके लिए, नहीं नॉन रेजिडेंट के लिए। पहले फॉरेन कंपनी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास जा सकती थी, ओनली फॉरेन कंपनी, DRP जो मैकेनिज्म है, फॉरेन कंपनी जा सकती थी। अब लिख दिया उन्होंने एनी नॉन रेजिडेंट इंक्लूडिंग ए फॉरेन कंपनी, वो जा सकती है। लेकिन पहले होता था कि रिटर्न भरी और उस AO ने वेरिएशन किया रिटर्न में, रिटर्न भरी और उसमें वेरिएशन। अब आपने रिटर्न नहीं भी भरी तो भी आप DRP में जा सकते, उसने असेसमेंट कर दी तो भी आप DRP में जा सकते। These are the two advantages which has been given under 144C, but this is only meant for non-resident and foreign company and not to any other. That advantage I am telling you is there. लेकिन एक चीज और कर दी, जो E assessment अभी तक 143(3) के लिए होती थी,
आगे से ई असेसमेंट 143(3) सेक्शन चेंज कर दिया, 144 में भी होगी, मतलब 144 भी कर सकती है ई असेसमेंट। आपने रिटर्न भरी नहीं तो भी ई असेसमेंट हो सकती है, या रिटर्न भरी आप अपीयर नहीं होते तो भी ई असेसमेंट हो सकती है। सर और बड़े पॉइंट है, लेकिन अब टाइम हो गया, कोई रह गया होगा तो फिर करेंगे, क्योंकि सारा दिन आज बोलते ही रहना है। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस। सर ये अभी जरा कंक्लूड करना हमने, इसके बाद आप बाद में पूछ लीजिएगा। सर इतना मुश्किल बजट, इतना इंट्रिकेट बजट आपने इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किया। आई थिंक सर यू डिजर्व अ स्टैंडिंग ओवेशन।